صحافتی تنظیموں اور نامور صحافیوں نے نیوز ون ٹی وی کے نشریات متاثر کرنے اور چینل آخری نمبرز پر رکھنے کے لیے کیبل آپریٹرز پر دباؤ ڈالنے کی مذمت کی اور اسے آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا۔ صحافتی تنظیموں نے ملک بھر میں احتجاج کا عندیہ دے دیا ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان، پشاور پریس کلبز کے عہدیداران اور حکومتی اقدام ناقابل قبول قرار دے دیا۔ پیمرا یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری عمران یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ عمران صاحب، نیوز ون کی نشریات متاثر ہوئیں، اس کو آزادی اظہار رائے پر حملہ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی میں ہی آزادی اظہار رائے کے اوپر ایک حملہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حکومتی ہتھکنڈے جو ہیں وہ صحافیوں کی آواز کو دبا نہیں سکیں گے۔ ہمارا یہ خیال ہے اور یہ کہ ہمارا بلکہ یقین ہے اس حوالے سے کہ صحافت کے اوپر حکومتی ہتھکنڈوں اور اس طریقے سے ان کے اوپر پابندی لگانا یہ ہمیشہ سے رہا ہے حکومت کا وتیرہ، اور جو بھی حکومتیں اس سے پہلے بھی رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ دیکھیں، ان کی اپنی غلطیاں ہیں، ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں، ان کی اپنی نالائکیاں ہیں، اس کو چھپانے کے لیے اگر اس حوالے سے کوئی اینکر بات کرتا ہے تو یہ کسی بھی میرے خیال سے کوڈ آف کنڈکٹ میں شامل نہیں ہے کہ کوئی اینکر کسی کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا۔ اس تنقید کا ایک طریقہ کار ضرور ہو سکتا ہے، اس کی ایک طریقہ کار کو وضع کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی قواعد ضرور وضع کیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ اس طریقے سے کسی چینل کے اوپر جس سے کہ ہزاروں لوگ پورے ملک بھر میں وابستہ ہوں، اس کے اوپر پابندی لگانا، اور پھر خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کووڈ کے حالات میں یہ کہا جائے کہ صحافت کے اوپر لاک ڈاؤن لگانا، تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے حکومت کو اپنے اس رویے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کیبل آپریٹرز کو باقاعدہ کالز کر کے نیوز ون کو بند کرنا، یا اس کے چینل کو پیچھے کے نمبروں پر لے کر جانا، یا بلکہ بند کروانے کی جو ہے وہ کوشش کروانا، یقیناً یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو ہم کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے، اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس چیز سے باز رہے، اور یقیناً صحافت کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے اس ملک میں، جمہوریت کے لیے اس ملک میں۔ جرنلسٹ اب اس معاملے پر کوئی پروٹیسٹ وغیرہ کرنے جا رہی ہے؟ جی بالکل، ہم اس حوالے سے لائحہ عمل طے کر رہے ہیں، اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور جیسے ہی وہاں سے ہمیں اس حوالے سے کوئی کال ملتی ہے ہم ضرور اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں گے۔ ہم نے فارملی آج جو ہے وہ ایک اس حوالے سے پریس ریلیز بھی جاری کی ہے اور مذمتی بیان بھی جاری کیا ہے، اور خیبر یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے اوپر یقین رکھتی ہے، اور ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہے وہ نہ استعمال کیے جائیں، صحافت اور صحافیوں کو اپنا کام کرنے دیا جائے، اور بجائے اس کے کہ آپ اپنے کام کی کوتاہیوں کے حوالے سے صحافیوں کو پکڑیں، آپ اپنی کوتاہیاں ٹھیک کریں، آپ اپنی غلطیوں کو درست کریں، تاکہ صحافیوں کے پاس جو ہے وہ آپ کے مطلب اچھے امیج کو وہ اجاگر کر سکے۔ اور سمپل سی بات یہ ہے کہ حکومت جب کوئی غلط کام کرے گی، اپوزیشن کا بھی یہ فرض ہے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے، صحافیوں کا بھی یہ فرض ہے۔ صحافت کا مقصد یہی ہے کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے جو بھی ضروری اقدامات کیے جائیں، اور یقیناً اگر حکومت اس حوالے سے اپنی فرض سے کوتاہی برتے گی تو صحافت بھی اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرے گی، اور اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خیبر یونین آف جرنلسٹ اس حوالے سے جو نیوز ون کی نشریات کو بند کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس چیز سے باز رہے۔ سیکریٹری خیبر یونین آف جرنلسٹ عمران یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ملک بھر کے پریس کلبز اور صحافتی تنظیموں نے نیوز ون کی نشریات متاثر ہونے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ آزادی صحافت پر حملہ، نیوز ون کی نشریات متاثر ہوئیں، جس کے بعد کیبل آپریٹرز پر دباؤ ڈالنے کی مذمت بھی کی جا رہی ہے صحافیوں کی جانب سے، اور آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ صحافتی تنظیموں نے ملک بھر میں احتجاج کرنے کا بھی عندیہ دے دیا ہے۔ کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی نے کہا کہ یہ افسوسناک اقدام ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ حکومت نے اقدام پر نظر ثانی نہ کی تو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ بہت افسوسناک بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو قانونی کارروائی ہے، اس سے پہلے ہی آپ کیبل آپریٹرز کے ذریعے پورے ملک میں ایک چینل کا بریک آؤٹ کر دیں، تو ایسا تو مارشل لاؤں میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں ملک گیر احتجاج کرنا پڑا، پریس کلبوں میں جو ہے وہ دھرنے دینے پڑے، یا جو بھی کرنا پڑا وہ ہم کریں گے۔ لاہور پریس کلب کے صدر ناظم چودھری اور سیکریٹری جنرل عبد المجید نے کہا یہ ہتھ کنڈے پرانے ہو گئے۔ یہ ہتھ کنڈے بہت پرانے ہیں، حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ملک کے حالات جس طرح کے ہیں اس میں
ऐसे हथकंडों का, ऐसे जो हरबों का, वो अब कोई जवाब नहीं बनता। ये वाकई अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत है, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप थ्रेट करें या केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालें कि टीवी को बंद कर दिया जाए। सदर PFUJ शहजाद जुल्फिकार और सेक्रेटरी जनरल राना अजीम ने भी हुकूमती इकदाम की मजम्मत की। अगर चैनल को जबरदस्ती जो बंद कराने की साजिश की जा रही है, इससे ना रोका तो फिर ज़हन में रखें कि पूरे पाकिस्तान में इसकी कॉल भी दी जाएगी और ये आज़ादी सहाफत पे हमला है जिसे हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। किसी भी बहाने से, किसी भी उससे वो उठा के किसी को ऑफ एयर कर देते हैं, नशरियात बंद करवा देते हैं, केबल ऑपरेटर को कहते हैं फलानी जगह जो है बंद कर दे, इसको इस नंबर पर ले आए, बिल्कुल काबिल मजम्मत है। साबिक सदर कराची प्रेस क्लब इम्तियाज खान फरहान ने कहा, इस इकदाम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। देखिए, कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है, अगर किसी ने कोई ऐसी गलत बात की है कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। आप वहां जाए और कहें कि ये बात गलत हुई है, सही है, तो लैंड ऑफ लॉ जो है वो जो एग्जिस्ट करता है उसके मुताबिक फैसला होगा। मुल्तान प्रेस क्लब के सदर शकील अहमद अंजुम ने कहा, हुकूमत इदारे राय को खत्म करना चाहती है। हुकूमत जो है बार बार इस किस्म के इक़दाम कर रही है और वो मीडिया को दबाने की कोशिश कर रही है। इजहार राय को जो है बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहादत हुसैन ने कहा, हुकूमत से खुद कुछ नहीं हो रहा तो मीडिया का गला दबाना शुरू कर दिया। पेशावर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल शहजाद फहद ने कहा, न्यूज़ वन की इंतजामिया के साथ खड़े हैं। न्यूज़ वन की बहाली के लिए प्रेस क्लब में एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। हम पेशावर की जितनी भी बरादरी हैं, हम अपने न्यूज़ वन के जो सहाफ़ी हैं उनके साथ खड़े हैं और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम हुकाम से मुतालबा भी करते हैं कि इसकी जो बंदिश है इसको फौरी खत्म किया जाए। साबिक सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, हुकूमत को खबरदार करते हैं, इस तरह के इकदाम से बाज रहे। सदर PFUJ GM जमाली ने कहा, अगर आपको किसी चैनल से कोई तहफुजात है तो कानूनी तरीका इख्तियार करें। सदर IRUJ आमिर सज्जाद और सेक्रेटरी जनरल तारिक वर्क ने कहा, हम चैनल बंद होने नहीं देंगे। नेशनल प्रेस क्लब के सदर अनवर रजा ने कहा कि पैमरा का नोटिस भिजवाना आजादी सहाफत पर हमले के मुतरादिफ है। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर नासिर और जनरल सेक्रेटरी इमरान यूसुफ जई ने कहा, सहाफत को डिक्टेट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। न्यूज़ वन की नशरियात मुतासिर होने पैरमा की जानिब से चैनल आखिरी नंबर पर रखने के लिए केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डाला जा रहा है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। ख्वाजा साहब, न्यूज़ वन की नशरियात को बंद कर दिया गया है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज़ादी सहाफत के ये बिल्कुल मुनाफी है और किसी भी चैनल या किसी भी प्रोग्राम को बंद कर देना, मैं समझता हूं कि वो जमहूरियत की तसलसल के अंदर एक बदनुमा दाग है। और हम ये भी समझते हैं कि जहां तक सहाफती इक़दार एक जिम्मेदाराना सहाफत का मुतालबा करते हैं, वहीं पर हुकूमत भी आइन के चौथे सुतून के साथ हमांग के ऐसे उसूल इस्तवार करे ताकि इस किस्म की सूरत हाल दरपेश ना हो। पूरी दुनिया में सहाफती इक़दार मौजूद हैं, कहीं पर भी किसी चैनल किसी अखबार पे पाबंदी नहीं लगती तावक्ते कि वो उसके आइन या उसके कवानीन की खिलाफ वर्जी करे। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए लीगल डिपार्टमेंट को, हमारी लॉ मिनिस्ट्री को भी बड़ा वर्क करना चाहिए और चैनल के भी कानूनी माहिरीन जो है ना वो उसको मुकम्मल महारत से उसको इवेल्युएट करें ताकि इस तरह चैनलों पे पाबंदी लगने से न सिर्फ रोजगार मुतासर होता है बल्कि एक सहाफती आवाज भी जो है वो उसको दबाने के मुतरादिफ होता है। आप लोग हुकूमती इत्तेहादी भी हैं, इस मामले पर हुकूमत से बात करेंगे ख्वाजा साहब? बिल्कुल, इस सिलसिले में मैं आपके जब चैनल पे ये बीपर दे रहा हूँ तो बहसीत हुकूमती इत्तेहादी ही दे रहा हूँ और हम समझते हैं कि हुकूमत इस मामले का नोटिस ले, वजीर आजम इमरान खान इस मामले का नोटिस ले। यही चैनल हैं जो मुआशरे का अक्कास है, हमारी कारकर्दगी और हमारी तमाम तर कोशिशें इन्हीं चैनलों के जरिए पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम तक पहुंचाई जाती हैं। अगर इन चैनलों पे कटकन लग जाएगा या इनकी आवाज को दबाया जाएगा तो ये बिलवास्ता एक सियासतदानों का ही नुकसान है। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन, जिन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आज़ादी सहाफत पर हमला ना करे और न्यूज़ वन की नशरियात को फौरी तौर पर बहाल करवाया जाए। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स और सहाफती तंजीमों ने न्यूज़ वन की नशरियात मुतासिर करने को आज़ादी इजहार राय पर हमला करार दे दिया। सहाफती तंजीमों ने छोटे बड़े शहरों में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का इंतबाह दे दिया।
न्यूज वन की नशरियात मुतासिर करने पर सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज। मुल्क भर के प्रेस क्लब और सहाफी तंजीमों ने पैम्परा के इकदाम को आजादी राय पर हमला करार दे दिया। भावन नगर प्रेस क्लब के सदर अहमद चौधरी ने कहा, मीडिया की आजादी पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सदर टीवी रिपोर्टर्स एसोसिएशन झानिया शान शेख ने कहा, न्यूज वन की नशरियात बहाल ना की गई तो सड़कों पर आएंगे। मेलसी प्रेस क्लब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सदूर ने कहा, न्यूज वन ने आईना दिखाया तो बुरा मान गए। सरगोदा प्रेस क्लब के सदर ने कहा कि आजादी इजहार पर कदगन लगाने वाले जमहूरियत के कातिल हैं। सरगोदा सहाफी रहनुमा जुल्फिकार हाशमी, मलिक सलमान, इनामुल्ला कैसर ने कहा, हुकूमत सियासतदानों की तरह मीडिया से भी इंतकाम ले रही है। मंडी बहाउद्दीन में सहाफी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। जंग में भी प्रेस क्लब के बाहर हुकूमती इक़दामात की मजम्मत की गई। मानसेरा, एबटाबाद, चकवाल, गुज्जर खान, मुरीद के ओकाड़ा, हवेली, कोटा, दौड़ और दीगर शहरों के प्रेस क्लब के बाहर अहदेदारान ने हुकूमत के इक़दामात की शदीद मजम्मत की। आजाद कश्मीर के शहरों मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुंछ, बाग समेत दीगर शहरों में भी न्यूज वन की नशरियात मुतासिर हैं, जिस पर मुकामी प्रेस क्लब ने शदीद मजम्मत का इजहार किया। रहनुमा नूली गुज़मा बुखारी साहिबा भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। उनका मौक़िफ़ था कि बादशाह सलामत इमरान खान की शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती है। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उज़मा बुखारी ने मज़ीद क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। शाह सलाम, सबसे पहले तो मैं यकीनन मजम्मत करना चाहती हूँ इस फाशिस्ट हुकूमत की इन हथकंडों की कि जहाँ उनको सिर्फ अपनी मर्जी की बात सुनने की आदत है। चूँकि बादशाह सलामत जो इमरान खान है वो उनकी शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती, लेकिन वो सबकी शान में गुस्ताखी कर सकते हैं, वो बदतमीजी कर सकते हैं, वो गाली गलौज कर सकते हैं। उनके बुज़रा जो है वो किसी की बहन बेटियों तक को नहीं बख्शेंगे, लेकिन उनके घर की जो है वो खवातीन बहुत काबिल एहतराम है, उन पर बात नहीं हो सकती। जो खवातीन एंकर्स हैं उनको हरासा किया जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। जो हम खवातीन जो मुखालिफ पार्टी की खवातीन है, हमारे साथ भी यही रवैया है। और अब तो मतलब अजीब बात यह है कि मैंने देखा पूरा प्रोग्राम, पहले मैं नहीं देख सकी थी, मैंने प्रोग्राम देखा, मुझे समझ में नहीं आया कि उसमें इनको एतराज किस चीज पे है। अगर तो इनको कोई एतराज था, नोटिस दिया जा सकता था या उसके ऊपर कम से कम एक्सप्लेनेशन मांगी जा सकती थी, लेकिन उसके ऊपर अब कुछ कहा भी नहीं। और उसके बाद अगर इनको फिर भी अपने घर पे बात ले जानी है और खुद के अगर दामन साफ नहीं है तो इसमें कोई ना चैनल कुछ कर सकता है, ना एंकर कुछ कर सकती है, ना मेहमान कुछ कर सकते हैं। और इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत जो है जिन बातों पर मट्टी डालने की और वो करने की कोशिश कर रही है, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इस वक्त वो टॉक ऑफ द टाउन है। पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को मालूम है कि किस हवाले से क्या बात हो रही है। सो बड़ी अफसोसनाक बात है, मैं इसकी मजम्मत करना चाहती हूँ। और इस तरह से चैनल्स को बंद करना, उनको अपने हथकंडों के जरिए उनको कमजोर करने की कोशिश करना और हुकूमती एजेंडा टो करने के लिए उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये कोशिशें पहले भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं। मुशर्रफ साहब ने भी ये कोशिश तबाज माई मीडिया के साथ फरमाई थी, लेकिन ताकत जो है वो सिर्फ एक ही ताकत पायदार है जो परवरदिगार की जात के पास है। बाकी सब ताकतें आर्जी होती हैं। और इमरान खान साहब, मैं बड़ी कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि ये वो चिराग है जो बुझने से पहले जो है वो बहुत तेजी से फड़फड़ा रहा है। सो इसको बुझने से पहले ये हरकतें करनी है। और इनको अफसोस की बात यह है, मुझे आप मीडिया वालों के साथ भी दिली हमदर्दी है कि आप वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को मीडिया डार्लिंग ये आपके थे, आप उनके खाली जलसों को जो है वो हजारों का मजमा कहा करते थे। आपने उनका इतनी कैरेक्टर बिल्डिंग की, उनको इतना बड़ा लीडर बना के जो है वो लोगों के सामने पेश किया, और आज जो है वो उसी का उसके शर से जो है आप लोग भी महफूज नहीं है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उज़मा बुखारी ने क्या कहा, आपने जाना। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का भी इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने न्यूज़ वन पर पाबंदी के खिलाफ ये कहा है कि मीडिया के खिलाफ जो पाबंदी है इस पर ओछे हथकंडों की हम मजम्मत करते हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये भी जानिए। न्यूज़ वन की नशरियात को बंद करने के हवाले से वफाकी हुकूमत के इस अफसोसनाक अमल की मजम्मत करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि अगर कोई टीवी चैनल आपके किसी चहीते की जो है वो हकीकत बयान करे तो उस पर चीखें नहीं निकलनी चाहिए। आवाम की चीखें इस सेलेक्टेड हुकूमत ने बहुत निकाली हैं, लिहाजा अब इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा जो हक़ाइक़ टीवी चैनल्स या न्यूज़पेपर्स दिखाते हैं, और उस पर कुछ हौसला करना पड़ेगा और बर्दाश्त का मादा पैदा करना पड़ेगा।